یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ ZBC سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ کلانما گھر CIA کا مخبر اور سیف روم تک پہنچنے کی کوشش، جانیے صدر مادورو کو پکڑنے کے لیے امریکی کارروائی میں کیا کیا ہوا۔ Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. وینزویلا کی نائب صدر کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک واضح حکومت موجود ہے۔ En horas de la madrugada del día de hoy, exactamente a la 1:58 de la madrugada. یہ بھی جانیے کہ صدر ٹرمپ کو دنیا میں خام تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والے ملک وینزویلا سے کیا مسئلہ ہے۔ یہ جو 303 ارب بیرل تیل کی لڑائی ہے وہ امریکہ نے جیت لی ہے اور چین اور روس ہار گئے ہیں، اور یہ لڑائی اور یہ اب امریکہ اس سارے تیل پر قبضہ کرے گا، جیسے اس نے صدام حسین کو ہٹا کر عراق کے تیل پر قبضہ کیا، جیسے اس نے قذافی کو ہٹا کر لیبیا کے تیل پر قبضہ کیا، ویسے ہی اب وینزویلا کا تیل بھی امریکہ کو حاصل ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کی وینزویلا میں امریکی کارروائی پر تشویش، نیو یارک کے میئر نے اسے جنگی اقدام قرار دے دیا۔ مودی ممبئی سازش کرنے والوں کو اٹھوا لیں، ٹرمپ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کم ہیں؟ اسد الدین اویسی کا سیاسی بیان یا اکسانے کی کوشش؟ نریندر مودی جی، امت شاہ، دیویندر فڈنویس، جب ٹرمپ اپنی فوج کو بھجا کر وینزویلا سے قدمی کو اٹھا سکتا ہے، آپ پاکستان میں بھجا کر جو ممبئی کی سڑکوں پر سازش کرنے والے 9/11 کے ظالم لوگ ہیں، چاہے وہ مسعود اظہر ہو یا پھر لشکر طیبہ کا وہ ظالم شیطان ہو، مودی جی 56 انچ کا سینہ ہے تو بھجا کر اٹھا کر لاؤ۔ ملیے مہاراشٹر میں جانوروں کے ساتھ غاروں میں رہنے والے مکینوں سے۔ ہم یہاں 6 ماہ رہتے ہیں اور پھر 6 ماہ بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ چونکہ پہاڑ مویشیوں کے چڑھنے کے لیے قریب ہیں، اس لیے ہم یہاں ٹھہرتے۔ مزید یہ بھی جانیے کہ ڈارک انرجی کے تجربے نے آئنسٹائن کے نظریے کو کیسے چیلنج کر دیا۔ ایریزونا کے صحرا میں ایک تنہا دوربین ایک پراسرار قوت کی تلاش میں ہے، ایسی قوت جو ہماری کائنات کے حتمی انجام کا تعین کرے۔ دل اور دماغ کا محافظ، معجزاتی فوائد کا حامل مالٹے کا جوس، مگر اس کا استعمال کب اور کتنا کیا جائے؟ اس کے علاوہ مزید خبریں اور تجزیے بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی وقت کے مطابق سنیچر کی صبح 4:21 پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ امریکہ نے ایک جرأت مندانہ مشن کے ذریعے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑ لیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر اس ابتدائی پوسٹ کے لگ بھگ 7 گھنٹے بعد صدر ٹرمپ نے صدر نکولس مادورو کی ایک تصویر شیئر کی جس میں ان کی آنکھوں پر ماسک تھا، ہاتھوں میں پانی کی بوتل اور وہ ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس تصویر کے ساتھ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ نکولس مادورو USS آئیو جیما پر۔ یاد رہے کہ USS آئیو جیما وہ لڑاکا جہاز ہے جس کے ذریعے وینزویلا کے صدر کو امریکہ پہنچایا گیا ہے، جہاں وہ منشیات اور اسلحے سے متعلق الزامات کا امریکی عدالت میں سامنا کریں گے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز اور CBS کے مطابق یہ کارروائی کئی ماہ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ امریکی فوج کی ایلیٹ ڈیلٹا فورس نے صدر مادورو کے سیف ہاؤس یعنی گھر کی نقل تیار کر کے بارہا اس میں کامیابی سے داخل ہونے اور واپس نکلنے کی مشق کی تھی۔ ڈیلٹا فورس امریکی فوج کا اعلیٰ ترین انسداد دہشت گردی یونٹ سمجھا جاتا ہے، جو انتہائی خفیہ اور حساس کارروائیوں میں مہارت رکھتا ہے۔ CIA نے بھی زمینی ٹیم اور صدر مادورو کے قریبی ذرائع کے ذریعے ان کی سرگرمیوں اور رہائش کے مقام کی نگرانی کی۔ صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے 4 دن پہلے اس آپریشن کی منظوری دی تھی، لیکن فوجی حکام نے بہتر موسم کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔
सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि हम ये कार्रवाई 4 दिन पहले करने वाले थे, लेकिन मौसम मौजू नहीं था ऐसी कार्रवाइयों के लिए। मौसम बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। अचानक मौसम साफ हुआ और हमने कहा अब जाओ। हफ्ते की सुबह यह कार्रवाई शुरू हुई और ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने क्लब से बराह रास्त इसकी वीडियो देखी। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्होंने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को पकड़ने की कार्रवाई जो रात भर जारी रही उसे बिल्कुल ऐसे देखा जैसे मैं कोई टेलीविजन शो देख रहा हूं। उन्होंने कहा, अगर आपने अमेरिकी कार्रवाई की रफ्तार और शिद्दत देखी होती तो ये एक हैरत अंगेज मंजर था। ट्रंप ने मजीद कहा, मैंने कई अच्छे ऑपरेशन देखे हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. CBS के मुताबिक वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद एक CIA के मुखबर ने अमेरिकी फौज की एलीट डेल्टा फोर्स को निकोलस मादुरो को पकड़ने से कबल उनका मुकाम और पता मालूम करने में मदद दी थी। ये मुखबर एक वसी इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें फिजाई और सिग्नल्स इंटेलिजेंस भी शामिल थे। ये कार्रवाई कई माह की बारीक बीनी से की गई मंसूबाबंदी और CIA और महकमा दिफा के दरमियान शराकतदारी का नतीजा थी। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ पहले ही कह चुके हैं कि इदारा इंसानी जराए की भर्ती को तरजीह देगा। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि सदर मादुरो को पकड़ने के लिए CIA के मुखबर को कब भर्ती किया गया था। याद रहे कि अमेरिकी हुकूमत ने मादुरो को पकड़ने में मदद देने वाली मालूमात फराहम करने पर $50 मिलियन के इनाम की पेशकश कर रखी थी। रॉयटर्स के मुताबिक सदर मादुरो के करीब मौजूद एक अमेरिकी मुखबर उनकी नकलो हरकत पर नजर रख रहा था और मुमकिना कार्रवाई के दौरान उनका दुरुस्त मुकाम बताने के लिए तैयार था। कार्रवाई के दौरान अमेरिकी F-35 तैयारे भी कैरिबियन में मौजूद रहे। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने इस कार्रवाई से कबल कैरिबियन में बड़े पैमाने पर फौजी तैनाती की थी, जिनमें एक तैयारा बरदार जहाज, 11 जंगी जहाज, दर्जनों F-35 तैयारे और कुल 15,000 से ज्यादा फौजी शामिल थे। कार्रवाई की इब्तिदा में अमेरिकी तैयारों ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकस और इसके करीब उन आदाफ और फिजाई दिफाई निजाम पर हमले किए जो इस कार्रवाई की कामयाबी की राह में रुकावट बन सकते थे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिकी तैयारों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए एक लड़ाका तैयारा मौजूद था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस और FBI एजेंट्स ने काराकस में सदर मादुरो के सेफ हाउस पर धावा बोला, जिसे बादजा ट्रंप ने एक घर से ज्यादा किसी कले से तशबीह दी। इस घर में नस्ब स्टील के दरवाजे चंद सेकंड्स में तोड़ दिए गए। रॉयटर्स के मुताबिक सदर मादुरो ने उस दौरान सेफ रूम में जाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिकी फोर्सेस ने घर में दाखिल होने के बाद सदर और उनकी अहलिया को किस तरह पकड़ा, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के सदर ने सेफ रूम तक पहुंचने की नाकाम कोशिश की। ट्रंप ने कहा वो इसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें इतनी तेजी से घेर लिया गया कि वो अंदर जा ही नहीं सके। ट्रंप के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान कुछ अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं लेकिन कोई हलाक नहीं हुआ, जबकि एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा मगर वो वापस अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में कामयाब रहा। ट्रंप ने मजीद कहा, जब मादुरो को पकड़ा गया तो वो एक ऐसे घर में थे जो घर से ज्यादा कला लग रहा था और चारों अतराफ से मजबूत स्टील से घिरा हुआ था। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने सरकारी टेलीविजन पर खिताब करते हुए मुल्क पर होने वाली मुसल्लह जारहियत की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिफाई काउंसिल को फहाल कर दिया गया है। रोड्रिगेज ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मजीद रद्द-ए-अमल आइंदा चंद घंटों में सामने आने की तवक्को है। Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. उन्होंने आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क वेनेजुएला में हमारे लोगों के लिए यहाँ एक वाज़ेह हुकूमती निज़ाम मौजूद है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वेनेजुएला बावकार
और कानूनी मुकालमे के लिए भी तैयार है। Y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेज़ुएला में अमेरिका की फौजी कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि इसके खित्ते पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल गुतरेस के तर्जुमान ने कहा कि किसी भी सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम ज़रूरी है और वेनेज़ुएला में पेशरफ्त एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकती है। तर्जुमान ने वेनेज़ुएला पर जोर दिया कि वो इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के एहतराम के साथ जामे मुकालमा इख्तियार करे। उधर कोलंबिया ने रूस और चीन की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। दूसरी जानब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी कार्रवाई पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि किसी खुद मुख्तार मुल्क पर यकतरफा हमला जंगी इकदाम और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उनके मुताबिक मादुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क में फेडरल हिरासत में रखे जाने की मनसूबाबंदी से शहर के हजारों वेनेज़ुएली बाशिंदे भी मुतासिर हो सकते हैं। मेयर ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह न्यूयॉर्क के तमाम शहरियों की सलामती है और सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो के दरमियान कशीदगी बिलाखिर फौजी कार्रवाई और मादुरो की गिरफ्तारी पर मुंतज हो गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मादुरो को अमेरिका में मुनशियात स्मगलिंग, दहशतगर्द तंजीमों से रवाबत और खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के इल्जामात का सामना है। वाशिंगटन का दावा है कि वेनेज़ुएला से मुंसलिक गिरोह कोकेन और फेंटिनाइल अमेरिका पहुंचाने में मुलव्वस है, जबकि ट्रंप इंतजामिया मादुरो को इन गिरोह का सरपरस्त करार देती रही है। इसके बरक्स मादुरो इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहते रहे हैं कि अमेरिका मुनशियात के खिलाफ जंग को वेनेज़ुएला के तेल के ज़खायर पर कब्जे के लिए बहाना बना रहा है। वेनेज़ुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तस्दीक शुदा खाम तेल के ज़खायर हैं, मगर अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मुल्क रोजाना तकरीबन 9 से 10 लाख बैरल तेल बरामद कर रहा है, जिसमें चीन सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि पाबंदियों से बचने के लिए वेनेज़ुएला एक खुफिया घोस्ट फ्लीट के जरिए तेल फरोख्त कर रहा है। अमरीकी सेनेटर माइक ली के मुताबिक मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेज़ुएला में मजीद फौजी कार्रवाई मुतवक्के नहीं। ताहम वेनेज़ुएला ने अमरीकी हमलों को जारियत करार देते हुए कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। यूं ये बहरान तेल, मनशियात, पाबंदियों और ताकत की आलमी सियासत का एक नया बाब बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि किसी दूसरे मुल्क में की जाने वाली अमेरिका की कार्रवाई की इससे पहले कोई नज़ीर, कोई मिसाल मौजूद है? जानते हैं तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहर फर्दी से। किसी भी दूसरे मुल्क के सदर या सरबराह मुमलिकत को इस तरह गिरफ्तार करके अपने मुल्क में लाकर उसको हथकड़ियाँ पहनाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की बहुत कम तारीख मिलती है। अगर देखा जाए तो इससे पहले अमेरिका पानामा के सदर को लेके आया था और पानामा के सदर को भी उन्होंने, जो उनके जनरल थे क्या नोरेगो को, 1989 में उन्हें भी ड्रग्स के तहत लाकर 40 साल की सज़ा दी थी अमेरिका ने। वो पानामा के जनरल नोरेगो को थी। अब ये वेनेज़ुएला के सदर को ले आए हैं। उनके ऊपर $50 मिलियन का इनाम था। $50 मिलियन की ड्रग कार्टेल की बाउंटी थी कि अगर उनको गिरफ्तार कोई भी करे। अमेरिकी या ट्रंप इंतज़ामिया का ये कहना है कि उन्होंने अपने वारंट एग्जीक्यूट किए हैं, क्योंकि अमेरिकी अदालतों ने वेनेज़ुएला के सदर के नाकाबिल ज़मानत वारंट निकाले हुए थे कि इन्हें गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। $50 मिलियन उनके ऊपर इनाम था, जिसके तहत ये ऑपरेशन करके उन्हें वेनेज़ुएला से गिरफ़्तार करके ले आए हैं। आप इसको ट्रंप की बहुत बड़ी फतह कह सकते हैं। इससे पहले सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने गिरफ़्तार किया, लेकिन उन्हें अमेरिका नहीं ले जाया गया। उनका इराक में ही ट्रायल करके उन्हें फांसी दी गई। इससे पहले उनको भी एबटाबाद से पकड़ा गया, लेकिन उन्हें भी अमेरिका नहीं ले जाया गया। उनको वहीं मार दिया गया और उनकी लाश भी नहीं बताई गई। लिहाजा ऐसा कम होता है कि आप किसी हाई प्रोफाइल और इस तरह सरबराह मुमलिकत को पकड़ें और फिर अपने मुल्क में ले जाके उसका ट्रायल करें और वहाँ उसको सज़ा दें। लेकिन वेनेज़ुएला के सदर पे अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था, उसके वारंट जारी किए हुए थे।
वारंट तो वैसे नेतन्याहू के भी जारी हैं, लेकिन वो आलमी अदालत इंसाफ ने जारी किए हुए हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अमेरिका को अपने वारंट की बहुत हैसियत हासिल है, अहम था। अमेरिका ने अपना वारंट एग्जीक्यूट करा लिया है। आलमी अदालत इंसाफ अपना वारंट एग्जीक्यूट नहीं करा सकती, बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के जिन जजों ने वारंट जारी किया है, अब तो अमेरिका उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। लेकिन सर्बिया के भी सदर को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, मैं अगर आपको बताऊं 2001 में, लेकिन वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया था और वहाँ पे उनके खिलाफ ट्रायल हुआ था और सज़ा हुई थी। इस तरह अमेरिका लेकर नहीं आए थे या किसी और मुल्क में। पुराने ज़माने में हम बादशाह सुनते थे कि एक बादशाह दूसरे बादशाह को गिरफ्तार करके अपने दरबार में पेश करता था, और फिर वो पोरस वाला वो भी याद है, एक बादशाह वही सलूक करे जो दूसरे बादशाह से। आपको वेनेजुएला की बात समझनी होगी। 303 अरब बैरल तेल है वेनेजुएला में, सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है वेनेजुएला में। दुनिया में वो तेल सबसे ज़्यादा वेनेजुएला का है। तेल की लड़ाई है। चीनी नुमाइंदे ने वेनेजुएलियन सदर से मुलाकात की थी एक दिन पहले, लेकिन चाइना उसको बचा नहीं सका, पुतिन भी उसको नहीं बचा सका। देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता रजीम चेंज में, यूक्रेन की जंग में पुतिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी कंसेशंस अमेरिका को दे रहा है। और ये जो 303 अरब बैरल तेल की लड़ाई है वो अमेरिका ने जीत ली है और चीन और रूस हार गए हैं। और ये लड़ाई, और ये अब अमेरिका इस सारे तेल पर कब्ज़ा करेगा, जैसे उसने सद्दाम हुसैन को हटाकर इराक के तेल पर कब्ज़ा किया, जैसे उसने गद्दाफ़ी को हटाकर लिबिया के तेल पर कब्ज़ा किया, वैसे ही अब वेनेजुएला का तेल भी अमेरिका को हासिल हो जाएगा। और इस बार तो नेटो भी अमेरिका के साथ नहीं है कि वो इसमें हिस्सा डाले, अपना कोई शेयर मांगे। चीन और रूस भी नहीं है। ये तो अकेला अमेरिका का ऑपरेशन है और अमेरिका ये सारा तेल खुद ही रख लेगा। ये बहुत दिनों से आप देख रहे थे वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी थीं। वैसे तो अमेरिका में जंग की इजाज़त सेनेट देती है, लेकिन अमेरिकी सदर के पास किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने का अख्तियार है। ये सदर को वेनेजुएला से गिरफ़्तार करना या वो वारंट एग्जीक्यूट कराना ऐलान जंग नहीं है। वो एक ऑपरेशन किया है जिसकी अमेरिकी आइन में सदर को इजाज़त है। इसलिए वेनेजुएला का सदर जो है वो अब अमेरिकी अदालतों से 40 साल या 30 साल ड्रग कार्टेल में सज़ाएँ पाएगा। और वेनेजुएला की जो नई हुकूमत है वो अमेरिका के साथ पींगे डालेगी। जो वेनेजुएला का तेल होगा वो अमेरिकी मईशत को तरक्की देगा और वेनेजुएला और अमेरिका मिलकर दुनिया में कदम ब कदम हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका बेहद शुक्रिया। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान ने शदीद बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार कर सकते हैं तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान में मुबैना तौर पर मतलूब अफराद को उठवा सकते हैं। ओवैसी ने इस बयान में मुंबई हमलों का हवाला देते हुए मोदी को ललकारा कि 56 इंच के सीने का दावा करते हो तो अमली कदम उठाओ। को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है। आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। ओवैसी का ये बयान वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की अमेरिकी गिरफ्तारी के बाद सामने आया, जिस पर सोशल मीडिया में मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया है। बाद सार्फिन ने इसे महज सियासी दबाव की कोशिश करार दिया, जबकि दीगर ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक इश्तियाल अंगेजी कहा। पाकिस्तानी और भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक ये बयान जंग पर उकसाने की बजाय भारतीय हुकूमत पर अंदरूनी दबाव बढ़ाने की कोशिश है। मारूफ तज्जियाकार नसीम ज़हरा ने इसे मज़ीका खेज और गैर संजीदा करार दिया, जबकि सीनियर साफ़ी हामिद मीर के मुताबिक ओवैसी का मौक़िफ़ दरअसल मोदी हुकूमत की दरीना ख्वाहिश की तर्जुमानी करता है। माहिरीन का कहना है कि एटमी ताकत रखने वाले हमसाया ममालिक के रहनुमाओं को ऐसे बयानात में गैर मामूली जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की गुफ्तगू खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा सकती है। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के एक दूर उफ्तादा इलाके में 3 खानदान ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 4 नस्लों से गारों में रहने पर मजबूर हैं। इन खानदानों के पास ना काश्त के लिए ज़मीन है और ना ही अपने दर्जनों मवेशियों के लिए कोई मुस्तकिल पनाहगाह। जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उन्होंने
कुदरती गारों को ही अपना घर बना लिया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये घर नहीं है, ये गार है। पोप संडी के पहाड़ियों में मौजूद गार। ये गार सीहत दरी पहाड़ों की बुलंद चोटियों में वाक़ और ज़िला एहलिया नगर के अकोले तालुकिया में आते हैं। यहाँ 3 खानदान बसे हुए हैं। गारों को तकसीम करके घर बनाए गए हैं। 3 खानदान तकरीबन 150 गायें, 10 भैंसें और चंद बकरियों के साथ यहाँ रहते हैं। हम यहाँ अपने मवेशियों के लिए रहते हैं। पहले हमारी बकरियां यहाँ पनाह लेने आती थी। जब हम सुबह इन्हें छोड़ते तो दिन भर घूमने के बाद इसी गार में बैठ जाती थी। उन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। अब बारिश कम हो गई है। नीचे हर गांव वाले के पास खेत हैं। जब खेतों में फसल खड़ी होती है तो बकरियां लोगों के खेतों में पहुंच जाती हैं। इसीलिए इन दिनों हम यहाँ आकर रहते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, जानवर एक के बाद एक गार में वापस आना शुरू कर देते हैं। वो अंधेरे में भी रास्ता नहीं भूलते क्योंकि ये गार उनका घर है। ये गारों में रहने वाले खानदानों की चौथी नस्ल है। गारों में रहने की वाहिद वजह उनके मवेशी हैं। यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता क्योंकि गार की छत बहुत नीचे है। इसी तंग जगह में इन खानदानों ने अपना चूल्हा बनाया हुआ है। नीचे से लाया गया अनाज इन बोरियों में रखा है। सब लोग ऊपर सिर्फ चंद बर्तन लेकर आते हैं, उतने ही जितना घर चलाने के लिए काफी हो। दूध के कैन, बंधे हुए बछड़े और गाय, इन सब के दरमियान जो थोड़ी सी जगह बचती है वही खाना पकाने, रोजमर्रा के काम और रहने के लिए इस्तेमाल होती है। मदगे और मूठे खानदानों ने इस छोटे से गार में अपना घर बसाया हुआ है। सामने मवेशियों की जगह है और पीछे बची हुई जगह किचन की है। यहाँ कोई दीवारें नहीं हैं, सिर्फ गुंजाइश के मुताबिक इंतजामात हैं। सुबह जागने के बाद हम गोबर साफ करते हैं और जगह को धोते हैं। फिर हम गाय और बैलों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। इस गार में दिन का आगाज सुबह 4 बजे होता है। जानवरों का दूध धोना, खाना पकाना और मवेशियों को चरने के लिए छोड़ना, ये इनका मामूल है। फिर शाम को जब मवेशी वापस आते हैं तो इसी अंधेरे में दोबारा चूल्हे जलते हैं ताकि खाना पकाया जा सके। पोप संडी के एक और गार में बड़े खानदान रहता है। यहाँ बिजली पहुँच चुकी है। शादी के बाद मैं यहाँ रहने आई, तभी मुझे मालूम हुआ कि लोग गारों में भी रहते हैं। हम यहाँ अपने जानवरों के लिए रहते हैं। हमारा गांव भी एक घर है। इन लोगों के गांव में घर तो हैं, लेकिन जानवरों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। इतने ज़्यादा जानवरों के लिए शेल्टर बनाना इनके लिए मुमकिन नहीं। इनके पास खेत भी नहीं है, इसीलिए जून से नवंबर तक बरसात के मौसम में ये खानदान गारों में रहते हैं। सामीन, डार्क एनर्जी जो एक पुरअसरार कुव्वत है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कायनात को फैला रही है, लेकिन शायद ये कुव्वत अब बदल रही है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक ये बदलाव ऐसा है जो वक्त और खला के बारे में हमारी मौजूदा मालूमात को चैलेंज करता है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि वो एक ऐसी दरियाफ्त के दहाने पर हैं जो इस दौर में फल्कियात में सबसे बड़ी दरियाफ्त साबित हो सकती है। मज़ीद तफसील हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। एरिज़ोना के सहरा में एक तन्हा दूरबीन एक पुरअसरार कुव्वत की तलाश में है। ऐसी कुव्वत जो हमारी कायनात के ख़त्मी अंजाम का तयन करेगी। जो कुछ हम ज़मीन पर, सितारों में और कहकशाओं में देखते हैं वो सब एटम से बना है। ये कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा बनता है। बाकी ज़्यादातर एक चीज़ पर मुश्तमिल है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। लेकिन ये है क्या? ये सब एक बिग बैंग से शुरू हुआ। कायनात फैलने लगी और माहिरीन फलकियात का ख्याल था कि आखिरकार ये फैलाव कशिश शकल की वजह से सुस्त हो जाएगा। कुछ का मानना था कि ये वापस सिमट कर खुद पर ही गिर जाएगी, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। लेकिन 1998 में एक हैरानकुन दरियाफ्त हुई। सुस्त होने के बजाय सितारे और कहकशाएं एक दूसरे से पहले से कहीं ज्यादा तेजी से दूर होते जा रहे हैं। ये तेज रफ्तारी डार्क एनर्जी के बायस है। एरिज़ोना में मौजूद इस दूरबीन ने 3 करोड़ 50 लाख कहकशाओं की रफ्तार को ट्रैक किया ताकि इस नाकाबिले यकीन कुव्वत के बारे में मजीद जाना जा सके।
ماہرین فلکیات ایک بار پھر حیران رہ گئے. کہکشاؤں کی تیز رفتاری وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی تھی. یہ ایک بہت ہی عجیب منظرنامہ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو ہمارے سامنے فزکس کے لیے واقعی ایک نہایت دلچسپ چیلنج موجود ہے. کیا یہ آئنسٹائن کے نظریات کو چیلنج کرتا ہے؟ ہم آئنسٹائن کے نظریے کو رد نہیں کریں گے، لیکن ہمیں اس میں ترمیم کرنی ہوگی اور اسے بہتر طور پر سمجھنا ہوگا. کائنات اس قدر عجیب انداز میں کیوں برتاؤ کر رہی ہے؟ اس کے بعد رائل ایسٹرونامیکل سوسائٹی نے کوریا کی ایک ٹیم کی تحقیق شائع کی جو اس حیرت انگیز دریافت کی تائید کرتی ہے. اگر ڈارک میٹر ایک کاسمولوجیکل کانسٹنٹ نہیں ہے اور مستقبل میں کمزور ہو رہا ہے تو کائنات کی تقدیر بدل جائے گی. تو یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ اتنا سنسنی خیز نتیجہ کیوں ہے؟ یہ جدید کاسمولوجی کے پورے نظریے کو بدل دے گا جو 27 سال پہلے قائم کیا گیا تھا. اس موضوع پر سینکڑوں سائنسی مقالے شائع ہو چکے ہیں اور ماہرین فلکیات اس بات پر منقسم ہیں کہ بہترین وضاحت کیا ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں. آخر کون نہیں جاننا چاہتا کہ کائنات کا انجام کیسا ہوگا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ان بڑے سوالات میں سے ایک ہے جن میں انسان ہمیشہ سے دلچسپی لیتا آیا ہے، چاہے آپ اسے مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں یا سائنسی زاویے سے. یہ نتائج ہمیں نہ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ کائنات کا اختتام کیسے ہوگا، بلکہ شاید یہ بھی کہ یہ سب شروع کیسے ہوا. پاکستان میں مالٹے اور کینو کے عروج کے سیزن کے ساتھ مالٹے کے جوس کا استعمال بھی عام ہے، مگر ماہرین صحت خبردار کرتے ہیں کہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی جڑے ہیں. اگرچہ مالٹے کا جوس شوگر سے بھرپور ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں پینے سے خون میں شوگر اچانک بڑھ سکتی ہے، تاہم نئی سائنسی تحقیق کے مطابق روزانہ محدود مقدار میں اس کا استعمال دل اور دماغ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مالٹے کے جوس میں موجود فلیونائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس خراب کولیسٹرول کم کرنے، بلڈ پریشر بہتر بنانے اور دماغی کارکردگی میں عارضی اور طویل مدتی بہتری لانے میں مدد دے سکتے ہیں. خصوصاً بزرگ افراد میں یادداشت اور توجہ میں بہتری کے شواہد سامنے آئے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ پورا مالٹا کھانا جوس پینے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں فائبر موجود ہوتا ہے جو شوگر کے اثرات کو متوازن رکھتا ہے. تاہم اگر جوس پینا ہو تو 100% خالص بغیر چینی والا تازہ نچوڑا ہوا مالٹے کا جوس ہفتے میں 3 سے 4 بار ایک چھوٹے گلاس تک محدود رکھنا صحت کے لیے محفوظ اور مفید سمجھا جاتا ہے. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں. برطانیہ کی وزارت دفاع کے مطابق رائل ایئر فورس کے ٹائفون جنگی طیاروں نے شام میں داعش کے زیر زمین اسلحہ ڈپو پر فرانسیسی طیاروں کے ساتھ مل کر کارروائی کی ہے. وزارت دفاع نے بتایا کہ خفیہ اطلاعات کے مطابق اس ٹھکانے میں بڑی تعداد میں ہتھیار اور بارودی مواد ذخیرہ کیا گیا تھا. برطانوی حکام کے مطابق ہمارے طیاروں نے اس مرکز تک جانے والی متعدد سرنگوں کو نشانہ بنانے کے لیے IV گائیڈڈ بموں کا استعمال کیا. ابتدائی طور پر سامنے آنے والی معلومات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے.